Hello, friends. A very special and warm welcome to my channel. I am doing good, and I also expect that you all are doing perfectly well. In the last video, I was discussing about important questions of CA final audit. Actually, it was a standard portion, in fact, a complete standard portion of CA final curriculum, which is from chapter 1 to 11. And in my opinion, it is the most critical part to cover within a span of one day, along with six other subjects. But today, we are gonna to announce something else. Here is a big announcement regarding SCPM, which is Set B of Self-Paced Online Module. And as you all will aware that exams have been started and students start appearing for it too. And having a positive impact on ourselves, we can say that we could get a remark or the reviews from the students from who have already appeared for the exams. And the reviews I got from the students regarding the taste of set B, so it's neither very piquant nor very pleasant. अब लाइन में तो अपन है ही, टेस्ट चेक चखना ही पड़ेगा, बट पहले से पता हो कि अगर तीखा है तो बंदा पहले से प्रिपेयर हो जाता है। एंड फिर वो सिचुएशन कंपैरेटिवली इजी हो जाती है हैंडल करने के लिए। सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आई वाज सेइंग दैट it's mostly of a kind of an application based exam. Few direct questions were asked, but conceptual clarity of the subject is important to crack it. Even if there is a direct question, you need to go through the study material at least once with all the markings and underlying you have done while reading, so that you can get a shallow eye on the key points before appearing in the exam. उसके बाद अगर कोई कहता है that you need to focus more on practical portion, or someone says that you need to focus more on theory subject, I'm saying that these both contentions are wrong, because the paper is a combination of practical or theory portion. So you cannot say कि practical important है और theory important है। उसके बाद तो बात आती है वेटेज क्राइटेरिया की। तो वेटेज क्राइटेरिया का जहाँ तक मुझे लगता है जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया उसका इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर होता क्या है कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए और वो सारे क्वेश्चन अपने सिस्टम में इनपुट कर दिए। अब जो क्वेश्चन सिलेक्शन एल्गोरिथम है, वो कुछ क्वेश्चन रैंडमली उसमें से सिलेक्ट करता है एंड 50 क्वेश्चन वो कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर देता है, जिसे कैंडिडेट को सॉल्व करना होता है। तो अगर ऐसे में हम सिलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे, अगर हमने वेटेज क्राइटेरिया देखो और एग्जैक्टली उस क्राइटेरिया के हिसाब से 50% पोर्शन कवर कर लिया, तो एग्जाम में क्या पता चला उस 50% से आया ही नहीं। तो यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल काम नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर हमें 90% तक कवर कर लें तो अच्छा है, बट अगर हमने बहुत ही कम बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी कर रखी है तो यहाँ पर वो चीज़ नुकसान कर जाती है। दैट कुड बी अ डेंजर फॉर सेट बी, इनफैक्ट फॉर इंटायर स्पॉम। And as I have said earlier, that conceptual learning of the subject is critical to crack it in one go. And I want all of you to crack it at once. Now you will say how it is possible. So here I am with the thorough planning. The answer of this how is here. First of all, there will be lectures on YouTube. I'll discuss entire SCPM on YouTube, and such discussion will be strictly as per ICI material. I'll use institute material to teach you, and I'll underline the keywords or highlight the point that you need to focus on. तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अपना स्टडी मटेरियल लेकर बैठना चाहिए, और जो जो रिलेवेंट पॉइंट है वो वहाँ से मार्क करते चलो, क्योंकि अगर अपने हाथ से मार्क करोगे तो एक बार नज़र के नीचे से गुजरा हुआ होगा, तो वो चीज़ें कई बार क्या पता कब क्या कैच हो जाए।
तो चीज़ें कई बार एग्जाम में ही फिर याद आती हैं। उसके बाद दूसरे जो चीज़ मैंने प्लान की है विच इज़ वेरी इफेक्टिव इज द प्रैक्टिस सेशन। अब हम लेक्चर्स तो यूट्यूब पे ले ही लेंगे, उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा थोड़ी बहुत। अब एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज रिक्वायर्ड है जब, तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट्स डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस सेशंस लिए डिज़ाइन किए हैं एंड आई एम प्लानिंग टू टेक 4 to 5 प्रैक्टिस सेशन ऑन जूम। अब इस प्रैक्टिस सेशन की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं वो देखते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेशंस में हम सबसे पहले स्टडी मटेरियल और जो बीओएस नॉलेज पोर्टल पर एमसीक्यू दिए हैं वो सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उस एमसीक्यू की आंसर और रीजन फॉर दैट आंसर भी डिस्कस करने वाले। सेम पैटर्न अप्लाइज विद द केस सिनेरियो ऑफ स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में भी काफ़ी सारे केस सिनेरियो इंक्लूडेड है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जो केस स्टडी अवेलेबल है वो सारी केस स्टडी भी हम प्रैक्टिस सेशन में ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सबसे एफर्ट वाला पॉइंट अब आता है, वो ये है कि जितने भी पास्ट पेपर एंड आरटीपी इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली ही दिए हैं, तो वो सारे पास्ट पेपर और आरटीपी में हर एक में एक या दो केस स्टडी डाल कर दिए। तो अगर वो केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने अब क्योंकि रिसेंटली दी है, तो हो सकता है उस केस स्टडी से कुछ सिमिलर क्वेश्चन फॉर्म किया हो जो कि सिस्टम में अपने क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। तो ऐसे में हम वो पास पेपर और आरटीपी भी डिस्कस करेंगे और उससे रेलेवेंट एमसीक्यू, आज जो भी रेलेवेंट एमसीक्यू फॉर्म हो सकते हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके बहुत इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराए वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम इन्हीं प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे। एकदम मेरा मन था कि मैं लिखवा कर कराऊं, बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है तो लिखवा कर नहीं करा पाऊंगी। बट इतना समझा दूंगी कि अगर आपने एक बार किया हुआ है तो वहाँ पर आपको क्लिक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक बार हाथ से लिख कर करना है, तो वो आप यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो इतना सब हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद कैन आई एज्यूम कि आप 70+ ला कर देंगे मुझे? या ऑब्वियसली 70+ तो ला कर देंगे, एक कैटेगरी में रहना है अपने को। तो अब ये सारे कंटेंट जो कि बहुत ही क्वालिटी है, बहुत एफर्ट लगा है इसमें, and I want your sincereness too. That's why I kept this practice session paid. And this is very nominal charges of ₹499। बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं मैंने, बहुत सोच समझ कर रखे हैं। 499 हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, इतने कोई ज़्यादा नहीं है। और जितने भी प्रैक्टिस सेशन में मैं चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, even if after taking all this session you think that the thing that I have provided to you is not worth rupees 499, you can claim your money back. Literally, I'll refund the thing that I'm gonna to provide you, or the input that I have given to prepare all this takes a lot of effort, and it's just the uh, you know बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं। तो ये आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा इनपुट इसमें इन्वॉल्व है। एंड बियॉन्ड हम ऑल्टरनेट डे पर प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, सो दैट हमारी पहले यूट्यूब पे लेक्चर होगा, उसके बाद आप उसको एक बार घर पर पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे और फिर उसकी अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस करेंगे, सारे एमसीक्यू सब कुछ करके जाना है अपन को। एंड अब बात आती है कि ये कंप्लीट कब तक होगा। तो टेंटेटिव कंप्लीशन हम नेक्स्ट 10 डेज में, हम इसको 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे पूरा कोर्स, सारे लेक्चर्स, द ऑल स्टफ दैट आई हैव promised you, I am planning to wrap up all this lecture within next 10 days। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आज तक के सेडबी की शक्ल नहीं देखी, क्या वो 8 जून के बाद 8 जून के बाद कभी भी अपेयर कर सकते हैं एग्जाम की? यस,
टुडे इज 28 मई, एंड अगर किसी स्टूडेंट ने आज तक सेट बी की शक्ल नहीं देखी है तो वो भी 8 जून के बाद कभी भी एज पर देयर कन्वीनियंस एग्जाम के लिए इजीली अपेयर कर सकते हैं। एंड saying all that, here is a wish for you. Good luck and all the best. Be happy and take care. Bye bye.